So in the previous class what we were doing, हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का वो पार्ट कर रहे थे जहाँ पे कि डिग्री मेजर में एंगल अगर है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, और रेडियन में अगर है एंगल तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। याद है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. I'll just revise it for you guys again. लक्ष्य, कितने दिन बाद तुम्हें देख रहा हूँ। गुड टू Good evening, sir. या गुड इवनिंग। सो तो हम लोग वो पहले सबसे पहले तो उसको शुरू करते हैं ना। उसको करने के बाद हम लोग जस्ट इसको फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, जिससे जो बच्चे अगर नहीं थे उनको भी समझ में आ जाए और आप लोग का भी रिवीजन हो जाए, तो आगे जो बताएंगे आप लोग उसको समझ सको अच्छे से, राइट। तो अब देखो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में क्या रिलेशन है कि जैसा कि मैंने बोला था कि इफ द लेंथ ऑफ द आर्क मीन्स, so length of the arc here means, if I say, so this is the length of the arc. Okay. So this, if the length of the arc is 1 unit, and if this circle is of radius 1 unit, then the angle subtended by this arc of unity length is equal to 1 radian, right? So the definition says that 1 radian is the angle subtended by an arc which is equal to the length of the radius of the circle of which it is a part, right? So यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने रेडियस भी 1 लिया और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 लिया। अगर आप रेडियस 2 लोगे और लेंथ ऑफ आर्क भी 2 लोगे तो भी एंगल 1 रेडियन ही हो। अगर आप लेंथ ऑफ द आर्क x यूनिट्स लेते हो और रेडियस आप x लेते हो तो वहां पे भी अगेन द एंगल सबटेंडेड विल बी 1 रेडियन। इज इट क्लियर टू एवरीवन, राइट? सो हम लोगों ने ये देखा था कि जो एंगल थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, we are using length of the arc as 1 unit and the radius as also 1 unit. So this gets cancelled. You get angle theta is equal to 1 radian, right? So theta is equal to L upon R and this is equal to 1 radian. तो इसी को दूसरे फॉर्म में एक बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, हम लोग यूज भी करते हैं। इनफैक्ट लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा इन रेडियंस, राइट? So you can write angle in radian is equal to length of arc by radius, right? I hope it is clear to everyone. Yes, आर्यन, आपको क्लियर है? आर्यन, आप पिछली क्लास में थे क्या आर्यन? Yes, sir. You were there in the last class. Good, good, good. You were not there in IIT class, I suppose. You were not well. I'll share the video. Yeah, so I was in IIT class as well. I have the worksheet. Okay, okay. No, did you attend the Sunday's class? I thought that you missed it out. You were there? Yeah, yes, sir. I missed the Sunday class. Something came up. Yeah. So I'll send you the recording. You can see the recording and then you can access, you can do that assignment. Okay? Okay, sir. Okay. So relation between degree and radian. So there are two relations which we did in the last class, two formulas basically. So if you remember, what we had done is, if you have to convert angles from degree to radian. So let's say we have the angle given in degree and we have to convert it into radian. We multiply it by pi by 180. Second, if the angle is given in radian and you have to convert it into degree, you multiply it by 180 by pi. So if the angle is given in degree, you want the angle in radian, you multiply it by pi by 180. And if the angle is in radian and you want it into degree, you want to convert it into degree, you will have to multiply it by 180 by pi.
There is one more thing which we discussed in the previous class, that you have angles smaller in size of degree, with as compared to degree, and 1 degree is equal to 60 minutes. इसको आर्क मिनट भी कहते हैं. आर्क मिनट इसीलिए मेंशन करते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द टाइम वाला मिनट. तो आर्क मिनट मतलब ये एंगल वाला मिनट है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द टाइम वाला मिनट. एंड वी ऑल्सो डिड 1 minute is equal to 60 seconds, right? So 1 minute is equal to 60 seconds. And here again we write it as arc seconds. Right? Please write it down. Everyone has written this? Yes, sir. Yes, sir. Now we'll do this example where we have to convert 40 degree 20 minutes into radian measure, right? So I'll help you out with this. I'll give you questions for homework, but अभी के लिए अभी ये देखो और समझो कि कैसे convert करते हैं. तो यहाँ पे देखो डिग्री में भी है और मिनट्स में भी है. तो सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग जो हमें कन्वर्जन पता है वो डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन पता है. तो ये जो मिनट है इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो 40 डिग्रीज एक मिनट बचा. 40 डिग्रीज 20 minutes is equal to 40 डिग्री 40 और 20 मिनट्स को तुम डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे तो 20/60 हो जाएगा, राइट? 1 मिनट सॉरी 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, राइट? तो 1 मिनट विल बी 1/60 डिग्रीज. सो इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे. 40 20/60 डिग्री, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो 20/60 को कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो गया, 41/3 डिग्री हो गया, राइट? So this is equal to 121/3 degrees. अब ये 121/3 degrees है, इसको रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे. तो जैसा कि मैंने बताया, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, दिस इज इक्वल टू π/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट? we'll multiply by π/180 radian. So this is 121 π/540 रेडियंस. अब पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 हम लोग पुट करते हैं. तो 121 into 22 540 into 7 radians. And when you calculate this value, you will get 1331/1890. So this is equal to 0.704 radians. Is it clear? तो मैथ्स में जब करके दिखाना होगा ना तो तुम पाई के टर्म्स में लिख सकते हो. मतलब तुम्हारे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेसिकली एनसीईआरटी में मैथ्स का क्वेश्चन है, राइट? सो बट मैथ्स में जब करना होगा तो हम यहाँ पे करके छोड़ देंगे, राइट? पाई का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है. बट व्हेन यू आर डूइंग इन फिजिक्स यू विल हैव टू कैलकुलेट इन डेसिमल्स, राइट? तो तब ये कन्वर्जन करके यहाँ पे ऐसे ये फाइनल आंसर देते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड फिजिक्स बेसिकली. सो इन फिजिक्स वी नीड द फाइनल आंसर. In maths, you can even write it in terms of pi. Did everyone understand this? Yes, sir. Yes, sir. Now the other one is
convert 6 radians into degree measures. जब ये रेडियन से डिग्री मेजर्स करते हैं तब हम लोगों को बस डिग्री पे नहीं रुकेंगे, अगर वो फर्दर मिनट्स में और सेकंड्स में कन्वर्ट हो रहा होगा तो हम लोग फर्दर उसको कन्वर्ट करेंगे. मतलब वी कैन नॉट राइट इट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस या डेसिमल्स. हम लोग उसको ये नहीं लिख सकते कि 20/3 डिग्री हो गया. उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिनट्स और सेकंड्स में. कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लीज सी हियर. सो 6 रेडियंस इज इक्वल टू 6 into 180 by पाई. हम लोग क्या करते हैं, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 by पाई से मल्टीप्लाई करते थे. तो 180 by पाई डिग्री, पाई को 22/7 लिख लो. तो 6 into 180 into 7 divided by 22. So 3 and you have 11. So this is equal to 3780 upon 11 degrees. अब देखो समझो बच्चों, इसको क्या करते हैं ना हम लोग, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, उसको मिक्स फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे. तो मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 11 3s are 33, we have 48, 11 4s are 44, 40, 11 3s are 33, 343 7/11 degrees. Now what you will do, you will convert it one by one. मतलब ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, इस इंटीग्रल पार्ट को अलग कर देंगे. 343 डिग्री को अलग कर लिया. अब ये जो फ्रैक्शन था इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/11. डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करके इसको मिनट्स हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. सो नाउ दिस विल बिकम 343 डिग्री एंड 420/11 मिनट्स. अब इस 420/11 को फर्दर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा 343 डिग्री, और इसको कन्वर्ट किया तो 11 3s are 33, 90, 11 8s are 88, 38 2/11 मिनट्स. 420/11 को हम लोग ने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. अब इसको 343 डिग्री 38 मिनट्स 2/11 को अब हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू 343 डिग्री 38 minutes and 120/11. So 120/11 seconds. Now you again write it as a mixed fraction. So you will get 343 degree 38 minutes and 11 tens 110 होता है. 10/10/11 सेकेंड्स. अब देखो 10/10/11 सेकेंड, इसका अप्रोक्सीमेट, सेकेंड से तो छोटा कुछ है नहीं, राइट. हम लोगों को नहीं पता है एंगल्स में सेकेंड से छोटा कुछ, तो हम लोग यहीं पे रुकेंगे और इसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे. 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड. दिस साइन इज फॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यू. इक्वल टू साइन को अगर कर्व कर दें तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है. सो दिस इज 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. पहले उसको डिग्री से, डिग्री में जो हमारा इंटीग्रल पार्ट था उसको सेपरेट कर दिया, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया, और उसको जब मिनट को भी फिर से मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, उसके इंटीग्रल पार्ट को सेपरेट कर दिया, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, एंड सो ऑन. सो दिस इज द स्टेप ऑफ writing 6 radians into degree. Is it clear to everyone? Yes, sir. Just give me a second. सबने लिख लिया? Yes. Why is Ira not there?
If someone has her number, can you guys call her up and ask her to attend the class? छूट जाएगा उसका फिर concept. Adhiraj, Rhythm, if you have Ira's number, can you give her a call and ask her to join? Calling her. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. देखो ये तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जांपल है. कैलकुलेट द एंगल 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड इन रेडियंस. सबको हम लोग को रेडियंस में कन्वर्ट करना है ना. तो फटाफट करके हमको बताओ तो क्या है रेडियंस में आंसर. पॉइंट्स में निकालेंगे है ना, डेसिमल्स में निकाल के बताएंगे. अच्छा, जो बच्चे इसमें students who are in ICSC board, please buy this calculator FX991. I'll send you the link also on the group. ये FX991 साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीद लो, इससे तुम लोगों का काम हो जाएगा. और जो बच्चे ये सैट वाले बच्चे हैं उनको मैं अलग से मैं देख के बता दूंगा एग्जैक्टली. मैंने तो वो लिस्ट भेजा था, वो अक्षत ने उसमें से 2 ऐसे ढूंढे जो दोनों उस लिस्ट में नहीं थे. तो मैं उसमें से ढूंढ के बता दूंगा तुम्हारे लिए क्या फायदेमंद रहेगा कि जिसमें ग्राफ भी तुम देख सको, है ना. तो आई फाइंड इट आउट एंड सेंड इट टू. तुमने जो दोनों भेजे थे वो दोनों उसमें लिस्ट में नहीं है अक्षर. सर एक था वो नीचे सबसे था, जो सी क्यू करके था जो. पता नहीं, मुझे तो वो दोनों सीरीज में नहीं दिखे थे. मैं देख लूंगा एक बार दोबारा एंड विल लेट यू नो, है ना. मैं भी पीछे से करता हूं तुम लोग के साथ. ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री इन रेडियन. तो फर्स्ट पार्ट में 1 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 इंटू पाई बाय 180 कर लेंगे. दिस मच रेडियंस. पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो 22/7 इंटू 180 रेडियंस. So this is, we'll get the value equal to 1.74 into 10 to the power minus 2 radian. मेरा क्लास का भूल गए थे क्या आप? I'm sorry, sir. I didn't join at time. Okay, it's okay, it's okay. I just wanted you to attend the class, otherwise you'll miss the thing which we are doing. So पिछली क्लास में तो आप थे ही इरा. हम लोगों ने ये किया था कि भाई डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वी मल्टीप्लाई इट बाय पाई बाय 180, राइट. एंड रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 बाय पाई से करते हैं. सो वी आर डूइंग दोज एग्जांपल्स. Whatever portion you have missed, you can see the video and recorded video, ना. Yes, sir. So ये तो पहला वाला हो गया हमारा. बी पार्ट में क्या कह रहा है हमें, 1 मिनट का हमें रेडियन में कन्वर्ट करने बोल रहा है. 1 मिनट इज व्हाट, 1/60 डिग्रीज. तो इसको 1/60 डिग्रीज में पहले कन्वर्ट कर लो और उसके बाद फिर इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो. 1/60 डिग्री इंटू पाई बाय 180 कर लेंगे तो इसमें ये रेडियन निकल के आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 22/60 into 7 into 180 radians. So this will give you the value 2.91 10 to the power minus 4 radians. अब जो बच्चे सीबीएसई में, उनको ऐसे हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब ये सब क्या कैलकुलेशन दे दिया है और सर बोल रहे हैं आईएससी वालों को कैलकुलेटर यूज कर लो और हम लोग ने क्या पाप करा है. पाप करा है ना, सीबीएसई लिया है तो पाप ही है. नहीं, आई एम जस्ट किडिंग. सीबीएसई लिया तो पाप नहीं है. तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना. फटाफट कर लेना, कैलकुलेटर नहीं यूज करना है.
सी पार्ट है, और क्या पता तुम लोग जब तक 12th में पहुंचो तो कैलकुलेटर अलाउ हो जाए. देयर आर मेनी चेंजेस विच आर देयर इन द यू नो ये एजुकेशन वाला जो आने वाला है हमारा चेंजेस, तो वो आएंगे तो फिर उसमें शायद कैलकुलेटर अलाउ हो जाए. फिर जो मैंने लॉग टेबल पढ़ा है वो कोई काम का नहीं रहेगा. सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 मिनट्स हो गया, और उसको फिर से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो और 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो 1 सेकेंड इज 1/3600 डिग्री हो गया, और इसके बाद इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा इसमें रेडियंस आ गया. सो दिस इज 22/3600 into 7 into 180 radians, so which is equal to 4.85 into 10 to the power -6 radians. क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो हम लोग वील डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरेलैक्स. जो हम लोग पैरेलैक्स वाला 2 फॉर्मूला करे थे ना हम लोगों ने पिछली क्लास में, राइट? याद है पैरेलैक्स का 2 फॉर्मूला किया था. एक हम लोगों ने किया था जो हमें डिस्टेंस निकालना था, और दूसरे में हमें डायमीटर निकालना था, है ना? याद है आप लोग को? निकाल लो कॉपी, देखो क्या क्या लिखा था हम लोगों ने जब हम लोग को डिस्टेंस निकालना था. सो लेट्स से 2 चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी कि भाई अगर बेसिस हमें पता है, बेसिस मतलब 2 ऑब्जर्वेटरीज जहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे एक डिस्टेंस प्लैनेट या स्टार को, तो उसका जो डिस्टेंस था यहाँ से d था, और अगर एंगल सबटेंडेड यहाँ पे थीटा था, तो इस केस में हम लोगों ने ये एज्यूम किया था कि इफ द डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू दिस बेसिस, दिस वाज एज्यूम्ड टू बी अ सर्कुलर आर्क, राइट? एंड देन लेंथ ऑफ द आर्क b is equal to, right, l is equal to r theta. अभी तुरंत हम लोगों ने देखा यहाँ रेडियस क्या हो गया इसका, इस आर्क का d हो गया, तो b is equal to d into theta था, तो theta is equal to, और the distance d is equal to b upon theta, right? distance d is equal to b upon theta. ये पहला फॉर्मूला हम लोगों ने किया था जहां पे हम लोग को ये डिस्टेंस d निकालना था प्लैनेट का. You remember, everyone remembers this, right sir? और एक और चीज हम लोगों ने किया था कि अगर हमारे पास कोई प्लैनेट या कोई हेवनली बॉडी है, राइट, और इसका अगर हम लोगों को डायमीटर मेजर करना है, सो मान लीजिए ये ए बी और ये सी है, तो डायमीटर को अगर हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, let's say the diameter is measured by small d and this distance is capital D, right? So and this angle is theta, so diameter d is equal to, sorry ये इसको अल्फा मान लो just to differentiate it from the previous one. So here again you know this length of the, इसको हम लोग length of the arc मान लेते हैं, d is equal to alpha into b.
So the diameter or the size of the heavenly body d is found by alpha into capital D. यहाँ पे distance इस केस में ना ये distance given होगा तुम्हें, मतलब distance of that heavenly body from the ground, from the earth would be given, and you would be also given this angle which this whole planet is subtending at this point, and then you will have to calculate the diameter d. So we can do it using this formula, right? So these were the two applications which we saw of parallax method, right? ये दो एप्लीकेशन हम लोगों ने पैरेलैक्स मेथड के देखे थे, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस हम लोग कर रहे थे डिस्कस, और उसके अंदर पैरेलैक्स मेथड में ये दोनों चीजें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। Everyone has written these formulas again if you had missed out earlier. Yes, sir. So अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him, है ना। ये जितने क्वेश्चन है ना ये सब एक्सपेरिमेंटल है। बेसिकली क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं उनसे ये क्वेश्चंस बने, और ये बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना एप्लीकेशन बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो रियल लाइफ सिनेरियो में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इसको माना जाता है, राइट। सो मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर C and spots a very distant object O in line with AC. कोई distant object है O, उसको जब हम लोग देखेंगे, राइट, तो हमें इसी लाइन में ही दिखेगा। कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो एक स्ट्रेट लाइन में ही दिखता है ना, राइट। सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग व्यू कर रहे हैं तो वो हमें इसी लाइन में, जिस लाइन में ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है ना, उसी लाइन में हम लोग को दिखेगा, राइट। सो a man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at a point A in front of the tower C and spots a very distant object O in the line with AC. मतलब AC के along ही उसको वो दिख रहा है। यहाँ पे O लिखा हुआ है बीच में, बट वो बिकॉज बहुत दूर है तो वो AC के लाइन में ही वो दिखेगा, राइट। Now he then walks perpendicular to AC up to B. So he walks 100 meter, यहाँ पे आए, a distance of 100 meter and looks at O again, O and C again. तो जब वो O को देखेगा ना, O तो उसको इसी लाइन में ऐसे स्ट्रेट दिखेगा, राइट। सो जो भी वर्टिकल होगा उसी डायरेक्शन में उसको दिखेगा, क्योंकि फार अवे ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ पर से भी उसको वर्टिकली सामने दिखेगा, और 100 मीटर आगे जाएगा वहां से भी उसको वर्टिकली सामने ही दिखेगा। जस्ट एज्यूम कि हम लोग सन को देखते हैं, राइट, एक पॉइंट से अगर कहीं देखेंगे, थोड़ा अगर 100 मीटर आगे चले जाओगे तो भी तो तुमको उसी समय उसी डायरेक्शन में दिखेगा ना। सन का डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो जाएगा 100 मीटर चेंज करने से, राइट। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को जब हम व्यू करते हैं तो वो हमेशा उसी डायरेक्शन में दिखता है। तो अगर AC के अलोंग यहाँ पे वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को पहले देख रहे थे, अब वो इस डायरेक्शन में हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखेगा, राइट। अब बट वो जब नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखेगा ना तो उसको ही विल हैव टू बेंड हिज हेड टू सी दिस नियर बाय ऑब्जेक्ट, ओके। कोई पास की चीज को देखने के लिए तो 100 मीटर आगे चले जाओगे तो वो पीछे छूट गया ना, तो तुमको एंगल तो चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब लाइन ऑफ साइट फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट वुड बी दिस। सो since O is very distant, the direction BO is practically the same as AO, but he finds the line of sight of C shifted from the original line of sight by an angle theta, which is equal to 40 degree. That is, theta is known as parallax. तो बेसिकली क्या है कि जो हम लोग पैरालैक्टिक एंगल जिसको कहते हैं, हम लोगों ने वो एक एक्सपेरिमेंट किया था ना जिसमें हम लोगों ने ये पेन को रखा था, एक आईज क्लोज करके देखा, दूसरे को देखा। तो बेसिकली क्या था कि पीछे के बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमारा ये पेन मूव करता हुआ दिखता है, बैकग्राउंड नहीं मूव करता दिखता है, सामने वाला जो पेन है वो मूव करता हुआ दिखता है। तो बैकग्राउंड क्या हो गया, दैट इज द फार अवे ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑलवेज एट दैट पोजीशन ओनली, एंड बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस, जिसको बेसिस हम लोग कह रहे हैं, तो इसका पोजीशन चेंज करता दिख रहा है। सो वही चीज पैरालैक्स वाली चीज यहाँ पे भी है। अगर हम ये जो नियर बाय ऑब्जेक्ट C को A से देख रहे हैं तो वो AC के अलोंग है, बट
जब बी पे आ रहे हैं तो डायरेक्शन उसका चेंज हो गया, बीसी के अलॉन्ग हो गया, क्योंकि वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट. सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ पैरेलैक्स. अब इसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन. मतलब हम लोगों को ये डिस्टेंस x निकालना, मतलब AC का वैल्यू निकालना. सो इन द क्वेश्चन what is being asked is find the value of AC. And the theta angle, this theta angle is equal to 40 degrees. Now, if this is theta, this will also be theta. In alternate interior angles are equal, and this theta is equal to 40 degree. Now, you know, in triangle ABC, we have AB upon AC will be equal to tan 40 degree. है ना. tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है. इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया. सो AB अपॉन AC इज tan 40 डिग्री. तो AC विल बी इक्वल टू AB अपॉन tan 40 डिग्री. राइट. अब ये वैल्यूज, अब जो CBSE के बच्चे हैं उनको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, उसमें वैल्यूज दिए हुए होते हैं, वहां से निकाल सकते हैं. जो लॉगरिथमिक टेबल होता है ना, उसमें हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी एंगल के साथ उसका वैल्यू दिया होता है कि tan 1 डिग्री कितना होगा, 2 डिग्री कितना होगा, 3 डिग्री कितना होगा. ये ICSE वाले बच्चे 10th क्लास में इन्होंने वो टेबल देखा भी है, उसको क्वेश्चन भी किया है. आप लोग को CBSE वाले बच्चों को मैं बता दूंगा कि कैसे देखा जाता है. tan 40 डिग्री का अभी तो हम लोग कैलकुलेटर से यूज कर लेते हैं. AB इज इक्वल टू 100 एंड इफ यू सी दिस tan 40 degree, if we put, we have 0.839. 0.839. So 100 divided by 0.839 is 119. 119.17 meters. So this is the distance of the nearby object. Is it clear? Sir, could you explain this question once again? Yeah. See, as I said, when you are observing a distant object from a point, even if you move a little bit of distance, you know, it's a very far away object, और आप उसको ऑब्जर्व 2 पॉइंट से कर रहे हो, एक A से कर रहे हो, एक B से कर रहे हो, दोनों पॉइंट से वो आपको एक ही डायरेक्शन में दिखेगा, है ना. दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना. इसको मान लीजिए आप. अगर बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, अगर 2 पॉइंट से हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें एक ही लाइन में दिखेगा. अलोंग यहाँ पे A पे है तो वर्टिकली अगर हमें दिख रहा है तो AC के अलोंग वर्टिकल है, तो B पे खड़े होंगे तो वहां से भी वर्टिकली ही हमें ऊपर दिखेगा. राइट, है ना. दिस यू कैन ऑब्जर्व. मतलब रात में अगर कहीं, यहाँ पे तो इतना पोल्यूशन में तारा वारा तो दिखता नहीं है, बट अगर दिखता होगा तो कोई स्टार को अगर आप देखोगे रात में, आप यहाँ से देखो और ग्रैंड ओमेक्स के दूसरे किनारे पे जाके देखो. राइट, वो तो 1 किलोमीटर हो गया ना, तो भी आपको उतने वैसे ही उसी डायरेक्शन में दिख रहा होगा. राइट. अगर एक कॉर्नर पे लेट्स से ग्रीनविच के एंड पे आप देख रहे हो और अल्पाइन के दूसरे एंड पे देख रहे हो, दोनों सब जगह से आपको वो स्टार वहीं पे दिखेगा, उसी हाइट पे दिखे, मतलब उसी डायरेक्शन में दिखे. सो बिकॉज इट इज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. बट when you observe a nearby object, let's say हमारे सोसाइटी के बाहर मान लो एक पोल है, उस पोल पे जो लाइट है वो बिल्कुल लाइट के नीचे खड़े होके देख रहे हैं, वो हमें वर्टिकली ऊपर दिख रहा है, और वहीं पे उसी के ऊपर एक और स्टार दिख रहा था. बट हम लोग वहां से जब 100 मीटर आगे मूव कर गए तो पोल तो हमें किसी और एंगल पे दिखेगा, उस पे जो लाइट लगा है, बट वो जो स्टार था वो एग्जैक्टली ऊपर ही दिख रहा होगा, हम लोग वर्टिकली ऊपर ही दिख रहा होगा. राइट. So that's what we mean to say when we are doing this experiment. So the distant object when seen from A, it was along AC, but from B it is vertically upward only. But this nearby object C, to see that you have to change your angle. You have to change your angle. So this is the angle, you know, line of sight. ये जो B से C तक का जो line है, इस direction में आप देख पाओगे. So वो जो angle है ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री. आपको ये पूछा है क्वेश्चन में कि आप जब A पे खड़े थे तो उस समय ये जो ऑब्जर्वेशन, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे थे, इस A पॉइंट से व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट.
सो वी हैड टू फाइंड दिस डिस्टेंस। तो हम लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं, ये 90 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो उसके बाद परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan थीटा, उसको करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे Yes, sir. Thank you. इससे ज्यादा समझना भी नहीं है इसको, जितना समझ में इतना, दिस इज द मैक्सिमम यू कैन अंडरस्टैंड। सबने लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आधे बच्चे गायब क्यों हो गए अभी, कैमरा वैमरा ऑफ करके बिल्कुल आनंद में चले गए, वेकेशन मोड में। जहाँ जो बच्चों 11th क्लास में कोई वेकेशन नहीं होता है, कोई मजे नहीं होते। अब तो आ चुके हो, 2 साल तो रगड़ना है अपने, और ये तो स्टार्ट है। 2-3 बच्चों को ना सीरियसली हेयर कट की जरूरत है, एक क्रिस को, और दूसरा वो कहाँ गया, अबुदय अभी था, मुझे दिख रहा था, दोनों को। Anyways, so moon is observed from 2 diametrically opposite points A and B on Earth. ठीक है, the angle theta subtended at the moon by the 2 direction of observation is 1 degree for 54 minutes. मतलब मून को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ऑन द अर्थ, अर्थ के दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और मून यहाँ पे लेट्स से इस यहाँ पे मून है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। नाउ द एंगल थीटा सबटेंडेड, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट्स, गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट, और ये जो बेसिस है ना, ये जो बेसिस है बी, ये गिवन है क्वेश्चन में 1.276 इंटू 10 to the power 7 मीटर। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, हमें ये डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ कैपिटल डी निकालना है। क्लियर बच्चों? तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये देखो, ये डिग्री और मिनट में दिया हुआ है। हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें थीटा किस में था, रेडियन में था, है ना। दिव्या आप म्यूट पे थे तो, लेकिन मैंने समझ लिया आप क्या बोल रहे रेडियन में था, ठीक। तो थीटा रेडियन में, तो पहले सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू, अच्छा हम लोगों को जो डी का वैल्यू निकालना है, डी इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला था बी अपॉन थीटा, अगर तुम्हें याद होगा, अभी तुरंत हम लोगों ने किया था, राइट। अब ये जो थीटा है, इट हैज टू बी इन रेडियन, तो हम लोग सबसे पहले तो थीटा का वैल्यू रेडियन में निकाल लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो, तो 154 अपॉन 60 डिग्री हो गया, 6 9 टाइम्स एंड 6 10 टाइम्स, 19 अपॉन 10 डिग्रीज, ठीक है। इसको फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 19 अपॉन 10 into pi by 180 radians. So 19 into 22 divided by 10 into 180 into 7 radians. So this is 19 into 22 divided by 10 into 0.033 रेडियंस, राइट। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.31 या 32 कर लो, 10 to the power -2 रेडियंस। हमेशा you should always write it in स्टैंडर्ड फॉर्म, जो साइंटिफिक नोटेशंस हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें। अब ये तो थीटा का वैल्यू निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल डी निकालना है। कैपिटल डी इज बी अपॉन थीटा, बी का वैल्यू इज 1.276 into 10 to the power 7 divided by 3.32 10 to the power -2। So इसको कैलकुलेट 10 to the power 9, 12.76 divided by 3.32 करते हैं, 3.84 into 10 to the power 8।
Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please write it down. सब लोग लिखते हैं ना? कॉपी देखूंगा Yes, sir. Yes, sir. 11th क्लास में पहुंच गए इसका मतलब थोड़ा ना कोई कॉपी नहीं देखेंगे, कॉपी फिर भी देखेंगे। और उसी तरह से डांट भी सुनोगे जैसे 10th में सुनते थे, शायद ज्यादा जोर से। ना अब तो बड़े हो गए, पहले था कि डर था कि छोटे हो। राघव समझ में आ रहा है? आरव ने आज शुरू से ही कैमरा ही ऑन नहीं किया, क्यों आरव? तो स्मार्ट बच्चों, मेरे जैसा भद्दा आदमी हमेशा कैमरा ऑन रखता है, तुम लोग स्मार्ट हो गए तो कैमरा नहीं रखते। हाँ आरव, ईशान गुड। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग। अब हम लोगों ने एक और चीज करी थी कि भाई डायमीटर निकालने वाला क्वेश्चन, उसका भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 मिनट्स। तो एंगुलर डायमीटर अल्फा इज इक्वल टू 1920 सेकेंड, सॉरी। अब हम लोगों को पता है इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 1920 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, और उसके बाद 1920 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 डिग्रीज। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद इसको रेडियन में कर लेंगे। 1920 बाय 3600 डिग्रीज, और डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लिया। सो दिस इज 1920 22 3600 180 and 7। ठीक, सो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1920 into 22 divided by so 9.312 into 10 to the power minus 3। अल्फा का वैल्यू इतना आ गया। अब ये कह रहा है द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। देखो ये डायग्राम एक बार और याद करो। ये अल्फा था, ये स्मॉल डी था, ये कैपिटल डी था। सो स्मॉल डी इज इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल डी। तो ये अब हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 9.31 into 10 to the power minus 3। Distance D is 1.496 10 to the power 11। B is equal to 9.31 into 1.496। So this is 1.392, 11 minus 3, 8 or 10 to the power 9. So 1.392 into 10 to the power 9 meter. This is the diameter of sun. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो सब लोग, सबने लिख लिया क्या? Yes, sir. अब उदय मुझे ए नहीं देखना, मुझे तुम्हें देखना है। ए को हटा लो और अपना कैमरा ऑन कर लो।
ये क्वेश्चन खुद से कीजिए, आंसर दिया हुआ है, जस्ट टू चेक कि आपने सही किया है या नहीं किया है, फटाफट करके बताइए। सिमिलर है, डायमीटर सन का निकालना है। सर ऐसे डिस्टेंस हमेशा दिया होगा ना, ऐसे याद तो करने की जरूरत नहीं है ना? कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, सारा चीज दिया होता क्वेश्चन। अक्षर तुम्हें आ रहा है समझ? यस सर। कर रहे हो ना? यस सर। हो गया? दिव्यांश आ गया? यस Sir, done. अच्छा, गुड 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 बच्चा। जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी चीज है, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज फटाफट देख लें कैसे करना है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496, मींस कैपिटल डी is 1.496 into 10 to the power 11 meter. If the angular diameter alpha is equal to 2000 seconds, इसको 2000 divided by 3600 degrees में convert कर लिया, so 20 by 36 और 4 से कर लिया तो 5 by 9 degrees हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 5 by 9 into pi by 180 radians. So this is 5 into 22 divided by 9 into 180 into. So this is 9.7 into 10 to the power minus 3 radian. अल्फा निकल गया। अब स्मॉल d is equal to alpha into capital D, और 9.7 into 10 to the power minus 3, 1.496 into 10 to the power 11. So 9.7 into 1.496, 1.45 into 10 to the power 9 meter. I hope it is clear to everyone. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. यस सर। अब ये एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, आज तो नया टॉपिक शुरू करने का टाइम नहीं है। Will not start the topic. I just wanted to discuss few things. Let me discuss that. So कैसा लग रहा है? 11th क्लास में आ रहा है समझ में सब कुछ? अभी तक तो इजी लग रहा होगा। Yes, sir. What about other subjects? धीरे धीरे आ रहा है सर। हाँ, मतलब आई डोंट थिंक कि अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ डिफिकल्ट चीज किया है जो तुम्हें नहीं समझ में आया हो।
अदर देन डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा अगर किसी को डाउट हुआ होगा तो डिफरेंशिएशन में थोड़ा हुआ होगा. Physics is okay, Ishan, and what is not okay? Chemistry or maths? Ishan? Anyways, so see, chemistry is more about learning, right? So बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं केमिस्ट्री में. फिजिक्स में ऐसा नहीं है. फिजिक्स में 2-3 फॉर्मूले से ही पूरा फिजिक्स हो जाता है. थोड़ा मेहनत करो, टाइम टेबल अपना बनाओ. तुम लोग टाइम टेबल को अपने हिसाब से डाला. किसने टाइम टेबल अपना देखा भी कि मैंने जो शेयर किया है, कितने लोगों ने देखा और सोचा है फॉलो करने के लिए? आथ्या ने सोचा है, दिव्यांश ने सोचा है. सर सोचा है बस अभी. हाँ, ये सर सोचा है सर. सर मैंने देख लिया था, पर अपना खुद का बना लिया था देख उससे लिया पहले था, सर. तो नहीं, it should be 2 hours of each subject at least. ये सर 2 hours. Great, great. तो वो थोड़ा सा रूटीन अपना बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, शुरू से ही फॉलो कीजिए और शुरू से ही सीरियस रहिए. एक बार जो पीछे छूट जाओगे ना, तो फिर 11th क्लास में यू विल नॉट गेट अनदर चांस. इट्स नॉट लाइक 10th क्लास कि फिर से चांस मिलेगा और टाइम बहुत है, तीसरी बार चौथी बार करेंगे. एक बार पीछे छूट गया तो फिर चांस नहीं मिलेगा इसमें. और उसी वजह से क्या होता है कि लोग पीछे छूटते चले जाते हैं. फिर वो हिम्मत हार देते हैं कि भाई 11 तो हमारे बस का नहीं है, जैसे तैसे पास करना है, कैसे करना. तो वो तरीका नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. यू शुड बी अटेंटिव राइट फ्रॉम डे वन. डोंट लेट इट स्लिप इट फ्रॉम योर हैंड. तो 11th क्लास को बिल्कुल पकड़ के रखना है. उसके लिए बस तुमको यही करना है कि जितना पढ़ाया जाता है और उसका सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा तुम कर सको, जितना ज्यादा तुम पढ़ सको उसको बैक करने के लिए, उतना ज्यादा तुम्हें फायदा है. ठीक है. ऑलवेज ट्राई कि जो हम पढ़ाने वाले हैं वो पहले से पढ़ के. आई टेल यू, मतलब मैं जो भी जितना भी जानता हूँ या फिर जब भी पढ़ता था, जब मैं दिल्ली में ही मैंने प्रिपरेशन किया था आईआईटी का वे बैक इन 97. तो उस समय जब मैं क्लास के लिए जाता था, उस जमाने में 2 ही हुआ करते थे, एक फिटजी हुआ करता था और वीएमसी हुआ करता था. तो जब मैं क्लास के लिए जाता था तो मुझे याद है कि आई यूज्ड टू स्टडी द होल थिंग विच वाज टू बी टॉट इन द क्लास, और एक एक क्वेश्चन करके जाता था और उसके बाद फिर टीचर से शास्त्रार्थ होता था. तो आई डोंट से कि तुम भी वैसे करो, तुम सारे क्वेश्चंस करके, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एटलीस्ट गो थ्रू इट. है ना, एनसीईआरटी है तुम्हारे पास, जहां तक मैंने पढ़ाया तुम्हें पता है. इसके आगे क्या है, आई विल बी जस्ट कि तुम लोग सिंक में रहो. मैं एनसीईआरटी को पकड़ के चलूंगा. जैसे जैसे एनसीईआरटी चल रहा है वैसे वैसे मेरा सिलेबस चलेगा. मतलब आई विल नॉट जंप हियर एंड देयर कि ये पोर्शन इधर से कर लिया, ये इधर से कर लिया, ये इधर से कर लिया. उसका कोई फायदा नहीं है ना, बिकॉज यू विल नॉट गेट एन आइडिया कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ. उससे अच्छा है कि जो हम लोग एनसीईआरटी को बेस लेके चल रहे हैं वीकडे में, तो उसको तुमको यही ध्यान रखना है कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू टीच, यू शुड रीड इट वंस एंड कम. वंस यू रीड इट, तो तुम्हारे क्या है कि मान लो तुमने 25 to 30% चीजें समझी उसमें, बाकी जब मैंने पढ़ा दिया ना तो उसमें से और 50% ऐड हो जाएगा, तो 80 to 90% तुम समझ जाओ. 80 to 90% समझना इज लाइक यू आर डन. किसी ना किसी एग्जाम में तुम्हारा अच्छे एग्जाम में जरूर हो जाएगा. 100% तो किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता 100%. है ना, अगर मैं बोल दूं कि 12 साल से पढ़ा रहा हूँ और 4 साल आईआईटी में बिताए, या उसके पहले मैंने जो बिताया, है ना, हम लोग जो आईआईटी का प्रिपरेशन करते थे और अभी जो आईआईटी का प्रिपरेशन होता है उसमें बहुत डिफरेंस है. हमारे टाइम में बस 6 क्वेश्चन पूछा जाता था. देयर यूज्ड टू बी 6 क्वेश्चन व्हिच वी हैड टू सॉल्व इन 3 आवर्स. 3 घंटे में 6 क्वेश्चन होते थे. तो जस्ट इमेजिन कर लो, और जो बच्चा एक क्वेश्चन सही से बना देता था उसका आईआईटी हो जाता था. समझ लो कि क्या स्टैंडर्ड होता हो क्वेश्चन, है ना. तो क्वेश्चन पढ़ के अगर समझ में ही आ जाए ना कि किस चैप्टर से पूछा गया है, यही बहुत बड़ी बात होती है, राइट. तो अब तो वैसा नहीं रहा है. बट देन व्हाट आई मीन टू से इज, हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ते थे जस्ट टू गेट होल्ड ऑफ द थिंग्स, क्योंकि वैसे 6 क्वेश्चंस आते थे जो कि मतलब आप मान के चलो कि वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम माना जाता था आईआईटी हमारे में, राइट. तो बट हम लोग उतना ज्यादा जो पढ़ रहे थे, तुम्हें उतना नहीं करने की जरूरत है, बट एनसीईआरटी लेवल पे पूरा अपना स्टडी किया करो, है ना.
तो एनसीईआरटी पूरे कमांड रहेगा ना, तो योर 60 to 70% थिंग इज डन. उसके बाद उसका एप्लीकेशन आता है, राइट. उसका एप्लीकेशन विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग वीकेंड्स एंड ड्यूरिंग द वीकडे आल्सो, है ना. मेरा ऐसे भी रहता है कि हम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पे बहुत फोकस रखते हैं, तो वो तो तुमको कभी भी परेशान नहीं करेगा, बट थोड़ा सा तुम्हें पढ़ने की जरूरत है. जस्ट स्टडी प्रॉपरली, है ना. ओके, and put in your efforts. So without wasting much time of yours, I think you have another class today. So bye and take care, everyone. Thank you, sir. 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 Sir.